ହେଇଗଲା ତ ଆସିଲା। ଆସିଗଲା ଆଜି ଆଜି କରିଦେଲେ ସେ କରିନଥିଲି ଆଉ। ନୃସିଂହ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୁଧୀର ନମସ୍କାର କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ନମସ୍କାର। ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଜି ଜଏନ କରିବି। କାଳି ଭାଇନା ଆମକୁ ଟିକେ କହିଲେ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ନାଇଁ ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ମୋ ସାନ ଭାଇ କରିଛି ପରା, ସେ ଲାଗି ପଡି ତା ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି। ହଁ ହଁ ସେ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ମୋ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ସାର୍ ଭଏସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ହଁ ଆରମ୍ଭ କର। ଆରମ୍ଭ କର। ସେ ସାତଟା ଆଗରୁ କରିଦେଲେ ହବ ଆଉ, ସାତଟା ପରେ କଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଛି। ସଭାସଦଗଣକୁ ମୋର ହୃଦୟର ପ୍ରଣାମ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ହଁ ସାର୍ ପାଖରେ ରଖିଦେବି। ମୁଁ କୁମାରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱାଇଁ, ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରଧାରା ଶାଖା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଅଛି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତାର 55ତମ ଇ ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଅଛି। ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସାଧନା ଜିଜ୍ଞାସୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ପ୍ରତି ମାସ 24 ତାରିଖ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ରହିବ ଯେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା ପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ। सर्वेषां कृते नमो नमः। नमः सभायै सभायश्च सभापतिश्च। भाषासुरासि भवदङ्गवल्ली भाषैर्वदासि कृतदुःखसिन्धुं मन्दस्मितैरिन्दितशारदेन्दु वन्दे रविन्दाशनसुन्दरि त्वां वन्दे रविन्दाशनसुन्दरि त्वां वन्दे रविन्दाशनसुन्दरि त्वाम्। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭଉଣୀ ସୁଶ୍ରୀ ବିଜୟିନୀଙ୍କୁ ବିବେକ ବାଣୀ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟିନୀ ଲେଙ୍କା ବିବେକବାଣୀ ପାଠ କରୁଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ, ଧର୍ମ ଓ ପବିତ୍ରତା ଭାବ ଯେତେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଆମେ ସେତିକି ବାହାରେ ପ୍ରେମ, ଧର୍ମ ଓ ପବିତ୍ରତା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆମେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା କରୁ, ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଆମ ନିଜର ହିଁ ନିନ୍ଦା। ତୁମ ଆୟତ୍ତରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଗତକୁ ଠିକ୍ କର, ତାହା ହେଲେ ବିଶାଳ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଜଣେ ସାଧୁର ଧର୍ମ ସାଧନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେହି ସାଧନାରୁ ସିଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତି। ମାତ୍ର ନିଜ ଗୁରୁ ଏବଂ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବଳରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ନ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଥିଲା। କିଛି ନୂତନ ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହୀ ଓ ତତ୍ପର କରି ରଖୁଥିଲା।
युवपीढ़ी मानक मध्य राष्ट्र राष्ट्र को युवपीढ़ी मानक माध्यम से राष्ट्र उन्नति एवं सुदृढ़ कर लक्ष्य ही रखुले। व्यक्तिगत सिद्धि एवं व्यक्तिगत सिद्धि एवं शांति को प्राप्ति न करी राष्ट्र कल्याण एवं विश्व कल्याण रे से निजको समर्पित करथिले। आज आम यही आलोचना माध्यम स्वामीजी जीवन अनेक किसी कथा जानापी पाइबा। आज आलोचना चक्र पौरोहित कार्य को तुलवाई आम मान निकट उपस्थित अच्छा कवियत्री श्रीमती मंजुश्री बराड़ मैडम। मैडम आपको अनेक अनेक स्वागत। केन्द्रापड़ा ठाकुरहाट स्थित एक संभ्रात परिवार जन्मग्रहण कर भाषा साहित्य को गुरुमंत्र रूपे दीक्षा कर माध्यमिक शिक्षानुष्ठान दीर्घ 3 दशंधि ऊर्ध्व शिक्षादान करने सहित प्रधान शिक्षयित्री भाव कर्तव्य संपादन कर महामहिम प्रोफेसर गणेश लाल द्वारा सम्मानित होती। बाल्यकाल साहित्य रुचि रखा अवसर नेबा परे से बाणी साधन निमज्जिता राज्यर विभिन्न मूर्धन पत्र पत्रिका निजर सार साक्षर रखा संगे संगे विभिन्न साहित्य अनुष्ठान काव्य कलार परिचय देवा एवं राज्यश्री साहित्य अनुष्ठान कार्यकारी सभापति रूपे प्रतिबद्धता रखी से विभिन्न साहित्य अनुष्ठान सम्मानित और संबर्धित होती। कविता मंजुषा, कविता कल्लोल और भावतरंगिणी तांकर 3टी संकलन माध्यम से गभीर अनुभवशील सिद्धांत दर्शन संबलित मानववादी सुर साक्षर माध्यम पाठकीय प्राणसत्ता को भाव विमुक्त कर सारस्वत जगतर भिन्न क्षेत्र में देखा गले से जड़े चर्चित व्यक्तित्व। मैडम आपको अनुरोध करुच्छे आज यह कार्यक्रम को आगे को त्वरान्वित करने निमंते। जय जगन्नाथ। शुभ संध्या। स्वामी विवेकानंद लोक संसद विचारधारा विभाग केन्द्रापड़ार आज 55तम आकाशीय बैठक। यही बैठक रे उपस्थित रही जिलार समस्त सदस्य सदस्य सभापति महोदय संपादक महोदय तथा जिला बाहर समस्त ज्ञानी गुणी प्रज्ञावारिधि मानू मु स्वागत करुच्ची, अभिनंदन जनाऊँची, शुभेच्छा जनाऊँची। आज सभारे मत सभापति आसन रे आसीन कराइथिबारु मु निजकु धन्य मन करुच्ची। गुरु श्री श्री रामकृष्ण परमहंसक आशीष कृपा मस्तक धारण करी जो महापुरुषंकर अक्लांत चेष्टा निर्भीक आत्मोत्सर्ग भारत को गौरवमय करी तोली पारिछि से विप्लवी विस्मय सन्यासी अग्निप्रभ ज्योतिष्क केवल भारत मध्य सीमित नुहंती सारा पृथ्वी को परिव्याप्त। से एक संदीक्षण मुहूर्त स्वामीजी आविर्भाव होई तांकर तेजदीप्त बाणी तांकर ए तेजदीप्त बाणी द्वारा समस्त को सारा पृथ्वीवासी को आकर्षित करी नूतन दिशा प्रदर्शन करि पारिछंती। सेही महापुरुष वाग्मी विवेकानंदंकर प्रधान साधना थिला जगतर कल्याण, जहाँकि गुरु रामकृष्णंकर निर्देश थिला। गुरु रामकृष्णंक सहित से दीर्घ 4-5 वर्ष बितेला परे निर्विकल्प समाधि रे लीन होवा पाई तांको मन अधिक व्याकुलित हेउथिला। एकदा एमती एक शुभ मुहूर्त देखी से शुभ मुहूर्त देखी जे गोटे निर्विकल्प समाधि रे लीन होवा पाई व्यस्त होले एवं से मध्य एक संध्या समय रे तांको समाधि नैथिले। प्राय राति 9टा बेलକୁ तांकर समाधि भग्न हला। समाधि भंग हेबा परे नरेन का अंतर रे अपूर्व दिव्य आनंद रे परिपूर्ण हो जाइथिला। सेति बेले ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तांका पाखक आसी कहिले ताहले मा तते सब देखै देले हौ तबे वर्तमान ठारू ए सब रे सब ताला पड़िला आ चाबीटा बो पाखर रहिला। जेते बेले तोर सब कार्य शेष हबो सेते बेले एक ठाक तू फेरी पाइबू। एमती रामकृष्ण को प्रश्न पचारि थरे रामकृष्ण विवेकानंद को प्रश्न पचारिथिले तुमे कौन चाहुच? उत्तर रे स्वामी विवेकानंद कहिथिले मोर इच्छा होउची मु सुखदेवଙ୍କ परी एकाधिक क्रमे 5-6 दिन समाधि रे लीन होइकी रहिबी, मात्र टिकिए तळ आसिकिरी खाली देह को बंचेवा पई टिके खाद्य खाइबी पुणी समाधि रे बुड़ी जीवी। एक कथा सुनी रामकृष्ण क्षुब्ध होइथिले एवं तांको उपरे मध्य विरक्ति प्रकाश करथिले। कहले ताले मु भाबिथिली तू गोटे प्रकांड बटवृक्ष हेई अनेक मनीषंकु तू आश्रय देबू, किंतु ता न होई तू केवल निजर मुक्ति चाहुचु। एक कथा सुनी
ନରେନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ସାଧନାର ପଥ, ଦୁଇଟି ସାଧନାର ପଥକୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ସମାଧାନର ପଥ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଯୋଗ ସମାଧି ଏବଂ ଇହଲୋକ ବିମୁଖ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, ଅନ୍ୟପଟରେ ଥିଲା ଯେ କି ଭାରତର ସମସ୍ୟା ବା ତେଜହୀନ ଉଦ୍ୟମହୀନ ପ୍ରାଣହୀନ ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ ଭାରତର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ ଏବଂ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା ଏବଂ ଏହି ମାନବ ସେବା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେ ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଗୁରୁ ବା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଂସଦ 54ଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ 55ତମ ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଛି ସାଧନା ଜିଜ୍ଞାସୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଆମ ଗହଣରେ ବା ଆମକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛୁ ପଣ୍ଡିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାରତୀ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ତଥା ସଂସ୍କୃତ ଭାରତ ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଯୋଜକ ପଣ୍ଡିତ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ ଲିଖିତ ସଂସ୍କୃତ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇ 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଅଛି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ସେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ସଭା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅମୃତ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ ହେବେ। ସାର୍। ରତ୍ନାକର ଧୌତ ପଦା ହିମାଳୟ କିରୀଟିନୀ ବ୍ରହ୍ମ ରାଜର୍ଷି ରତ୍ନାଢ୍ୟା वंदे भारत मातरम। सम्माननीय विवेकानंद संसद सभापति महोदया, संयोजिका महोदया, विवेकानंदंकर संबंध रे ये समस्त व्याख्यानमाला करिबा पई उत्साह प्रदान करुथिबा और अत्यंत पूज्य नमस्य काली भाईना तथा ये संसद सभापति अन्यान्य समस्त अधिकारीगण कार्यकर्तागण, भारतवर्ष रे दुई युवकंकर प्रतिष्ठा अच्छी, जड़े होचंती विवेकानंद, अन्य जड़े होचंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तृतीय व्यक्ति मध्य अरविंदर नाम को मध्य दिया जाए। ये तीनोटी व्यक्ति द्वारा भारतवर्षर प्रायतः राजनीतिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, ये समस्त क्षेत्र उज्जीवित है। भाव आम सामान्य भाव बुझे सामान्यतः सामान्य जन और महासाधक अंक मध्य प्रभेद कौन, केउ गुण कारण रु केही जीवन रे किछि विशिष्ट साधना करिसंती, केउ अंश असाध्य को साधन साध्य बोली देखाइबा को समर्थ होई थाए। आज पर्यंत जन्म नहीं समस्त महापुरुषंक ठारे किछि समान सही गुण कौन थिला, कौन सही गुण जो थे से माने समस्ते असामान्य हो गले। ये समस्त प्रश्नर उत्तर हेउची साधन जिज्ञासा बा साधन इच्छा, साधन करिवार प्रचंड इच्छा शक्ति, एक उत्साह, किछि महान आग्रह, जहा करणीय बोली चिंता करंती, से ही चिंता को साधन करिवार प्रबलतमा
इच्छा लक्ष्य साधन निमित्त तीव्रतर प्रयत्न उद्देश्य पूर्ण करिवारे महत्तम अभिलाष महत् साधन करने को हेब यही आकांक्षा ही हेउची साधन इच्छा बा साधन जिज्ञासा 1888 वर्ष रे कौनसी एक अज्ञात युवक जिज्ञासु साधनेच्छु होई घर बाहर 1893 तम वर्ष रे मे मास 31 तम दिनांक रे अमेरिका यात्रा आरंभ कले 20/1/1897 दिनांक रे से भारत को प्रत्यावर्तन कले केवल 9 वर्ष मध्य से विश्वविदित हो गले अमेरिका रु तांकर फेरिबा बेले पत्रकार मैंने तांको पचारिले अल्प समय रे आपण अमेरिका यूरोप मध्य रे वेदांत तरंग उत्पादन करि पारिले किपरि एपरि यह करिवारे किपरि आपण समर्थ हेले सेठारे आपणक सफलतार रहस्य कौन थिला ए 9 वर्ष भितर आपण नरेंद्र विवेकानंद हेले किपरि विवेकानंद टिके हसीदेले एवं कहिले जेते बेले गुरु रामकृष्ण परमहंस ब्रह्मत्व प्राप्त हेले सेते बेले आम्भे युव सन्यासीगण कोलकाता नगरी कौन से एक जीर्ण भवन में बास करूथिलु जो घरे सूर्यातप आ वृष्टि जल साक्षात भीतर को प्रवेश करुथिला भिक्षाटन रे सुखिला रोटी मिलुथिला यदि आंभ मानक मध्यरु अन्यतम केही बाहर को जाउथिले तेबे अन्य मानकु सेही गृह मध्यरे ही रहिबा को पड़ुथिला कारण आंभ निकटरे गोटे मात्र लंबा सन्यासी वस्त्र थिला सेतरे प्रायतः तांका निवास रे 16 जन सन्यासी रहुथिले गुरु भाई तांकर जदि कहीं बाहर को जाउथिला गोटे ही वस्त्र थिला और सेही वस्त्रटी को पिंधिकी से बाहर को जाउथिला अन्य माने समस्ते सेही प्रकोष्ठ मध्य रे रहुथिले एपरि कठिन परिस्थिति रे आम मनरे ना सूर्यातप ना वृष्टि जल ना सुखिला रोटी जंत्रणा देउ नथिला परं गोटे विचार गुंजरित हेउथिला जे गुरु रामकृष्णंकर संदेश भारतीय संस्कृति विश्वर सबुठारे प्रसार करने को हेब सेही गुंजन ही सेही साधनेच्छा ही मते एते बाट नहीं पर्यंत नहीं आसिला जाकि मते नरेंद्र रु विवेकानंद करदेला विवेकानंद कहूथिले व्यक्तिगत सुख भोग साधनेच्छा मो मनरे नथिला बरं थिला भगवत प्राप्तिर भारतर दारिद्र उन्मूलनर हिंदुत्व जागरण रूपक महाकार्यर पवित्र कार्यर युग कार्यर साधनेच्छा मोर संकल्प थिला काठिन्यर सम्मुखी करिबार तथिला अज्ञात भविष्यत आलिंगनर धैर्य थिला उत्साहर उदय थिला पावन दिव्य भव्य साधनेच्छा अदम्य थिला तेणु मु नरेंद्र रु विवेकानंद होइगली तांका मतरे ज्ञान कौशल योग्य दृष्टि यही तीनोटी सफलतार आयाम अटंती बहुत ज्ञानी अछंती परंतु सेमाने जीवन रे सफल होई पारि नाहंती सेहीपरि कौशल जानिथिया व्यक्ति मध्य अछंती बहुत ज्ञानी कौशल युक्त उभय गुणवंत होइथिले मध्य महत साधन करिबारे सेमाने समर्थ होई पारि नाहंती कारण योग्य दृष्टिर अभाव तीन गोटी गुण थिले मध्य साधन करिवार उचित एतादृश इच्छा शक्ति
जे पर्यंत इच्छा पर्याप्त परिमाण रे नथिले ए तीनोटी गुण थिले भी सुद्धा ज्ञान कौशल योग्य दृष्टि ये तीनोटी गुण थिले भी सुद्धा यदि साधन करिवार प्रचंडतम इच्छा शक्ति नाही ताहाले कौनसी कार्य साधित होई परिबो नाही ए कथा से कहउतले तेणु कार्य रे चैतन्य ही नाही यदि कार्य रे चैतन्य नाही जेउठारे कार्य साधन करिवार आग्रह नाही जेउठारे कार्य करिवार आग्रह बढ़िबो सेठारे ही किछि साधित होई परिबो कार्य प्रति श्रद्धा और विश्वास रहिबा मध्य आवश्यक विवेकानंद कहउथिले आपण किए या आपण जानती परंतु आपण कौन हेबाकु समर्थ ताहा आपण जानती नहीं आपण विद्यमान किछि देखि काहेकि बोली पचारुछंती अविद्यमान कौनसीर कल्पना करी काहेकि पचारु नाहंती काहेकि नुहे बोली एपरी काहेकि पचारु नाहंती सबु भाग्याधीन एपरी भावी आपण नीरवरे सबु नीरवरे बसु नाहंती जत्न करुछंती प्रयत्न करुछंती निजर भविष्यत जीवनर पूर्व योजना करुछंती कौन सही जीवन प्रतिमा को साकार करने को तुमे अनितर साधारण प्रयत्न करुछ सेठारे तुमर साधनेच्छा अनावरुद्ध अप्रतिहत वृष्टि कालर महाप्रवाह पूर्ण नदी शक्ति परि विवेकानंद मतरे साधनेच्छुर चिंतन उन्नत मन उदार हृदय विशाल वाणी प्रेरिका व्यवहार विनम्र जीवन स्वच्छ शिर शांत पाद उष्ण बुद्धि बुभुक्षित संभाषण मुक्त दृष्टि समग्र स्मरण पूर्वाग्रह रहित भाषण भावात्मक वाक्य गुड़िक सरल प्रयत्न प्रामाणिक संबंध आत्मीय भाव पारिवारिक स्वभाव सर्वसमावेशक कार्यशैली सामूहिकी अनामिकी वृत्ति हेउची मधुकर वृत्ति यदि आपण समर्थ बोली चिंता करिवे तेबे आपण निश्चय समर्थ हेबे परंतु सेथिपाई स्वत्कंठ साग्रह चिंता करिबा को हेबो समस्तक जशोगाथा पछरे रही समान कारण नाम साधन इच्छा जहाँ लक्ष्य अच्छी ता साधन इच्छा दृष्टि लक्ष्य विचलित जेपरी न हेबो सेथिपाई पर्याप्त साधन इच्छा आवश्यक संपूर्ण साधन इच्छा जहाँ शेषरे लक्ष्य पूरण करिवारे समर्थ हेबो विवेकानंद कहती गोटे ध्येय निमित्त जे उन्माद अवस्था को जाई थाए से ही प्रकाश को देखि पारे फल लाभ करिबारे बहुतरे जे हस्त रखे हस्तक्षेप करे से किछि हेले साधन करने को समर्थ हुई पारि न थाए क्षण काल पाई से उत्साह रे नाची पारे किंतु सेतिकिरे तार कथा समाप्त हो जाए एणु गोटे मात्र कल्पना हेबा उचित से कल्पना ही तुमर प्राणभूत हेउ मनरे ताकू ही चिंता करंतु सेथिपाई जीवन हेउ तुमर मस्तिष्क अस्थि मांसादि नाड़ी शरीरर समस्त अवयव सही कल्पना रे पूर्ण हुई रहू अन्य कल्पना पाखरे रखंतु जश पाइबा पाई स्थिर राजमार्ग यह अटे आध्यात्मिक विचार युक्त महानुभाव मानकर चिंतन रीति यह ही अटे अन्य लोके केवल शब्दायमान यंत्र स्वरूप जश द्वारा जश लाभ निमित्त निरंतर गतिशीलत्व अदम्य मनोबल आवश्यक से परि धीर महान पुरुष आत्मविश्वास रे कहे महासागर को पान करी पर्वत को चूर्ण करी पारिबी
सेपरी प्रखर तेज असीम कर्म शक्ति अदम्य मनोबल संपादन करी निरंतर परिश्रम और साधना कले अवश्य लक्ष्य प्राप्ति रे सफल हेबा। साधने छु कदापि संतृप्त होई न थाए, सेमाने यथास्थिति रक्षण रे संतुष्ट होई न थांती। जेते बेले से एक लक्ष्य साधन करंती सेते बेले नूतन अन्य कोनोसी एहा ठारू महत्तम लक्ष्य से दृष्टि रखी थांती। सेमाने निजर प्रलयर फल मध्य भोगिबाकू जानिबाकू इच्छा करंती। सेमाने करिबा को थिबा कार्य पछरे बा कार्य मध्यरे मूल्यांकन करिथांती, मूल्यांकन इच्छा करंती। एतादृश्य मूल्यांकन सेमानंकर प्रभाव विकास को प्रभावकारिता को बढ़ाइबारे सहायक होइथाय। साधन इच्छा महत कष्ट और महत त्याग को सुलभ साध्य बोली प्रमाणित करे। राजकूल रे जात सिद्धार्थ निजर 29तम बयस रे पत्नी पुत्र राजसुख प्रासाद सुख आदि परित्याग करी सामान्य जनतांक दुख दूर करिवा पाई निजे कष्ट सहन पूर्वक शेष रे बुद्ध होई गले। आज मध्य समग्र विश्व रे कोटि कोटि संख्यक लोक तांकर प्रेरणा पुरुष रूप रे ग्रहण करी बुद्ध देव को ग्रहण करुछन। हिमालयर शीत मध्य साधने छु साधकर निर्वस्त्र शरीर को पीड़ा देबारे समर्थ होई पारे नहीं। विफलता सफलता मध्यरे अंतर माने पार्थक्य माने सामान्य चिंतन साधनेच्छा मध्यरे विद्यमान सामर्थ्य पार्थक्य। साधनेच्छिर दृष्टि भविष्यत काल केंद्रित होइथिले मध्य से प्रकृत क्षणर कार्य करिथाय। जीवन रे कौन साधनीय यार चित्र महत् साधनर अपेक्षित सूक्ष्म योजना दीर्घकालिक तपस्या करिवार मानसिक सज्जता साधनेच्छु चिंतन रे स्थिर होइथाय। भविष्यत उपरे दृष्टि वर्तमान रे परिश्रम प्रयत्न रे निरंतरता साधनेच्छिर कार्य साधनार कारण होइथांती। लघु कार्य को श्रद्धार सह करिबा द्वारा सतत करिबा द्वारा ताहार परिणाम महान होई जाए। मते जीवन रे किछि महत् कार्य करिबा को अछि, भगवान मो द्वारा महत् कार्य कराउछंती एपरि चिंता करी आग को आत्मविश्वासर सहित साधनेच्छु प्रवर्तित होइथाय। साधना को प्रतिकूलता साधनेच्छु प्रतिकूल अवस्था रे मध्य स्थिर पाद रही थाए। से विफलता रे मध्य सफलता प्रभावित होई थाए। से विफलता रे मध्य सरलतया प्रभावित होई न थाए। तार आंतरिक आत्मविश्वास आग को जीवा पाई ताको साहाय्य करि थाए। विफलता ता पाई पाठ पढ़िवार एक अवसर परी एपरी से मने मने विचार करे। से कौन से कार्य को अपूर्ण त्याग करे नहीं। जहाँ किछि कार्य जे पर्यंत अपूर्ण रही से पर्यंत से उत्कंठित थाए समाप्ति करने पर्यंत। किंतु जेते बेले यह हेबा असंभव बोलिकी से स्पष्ट हो जाए, से अनुभव करे स्पष्ट हो जाए, सेते बेले से ताहा को परित्याग कर दिए करिवारे मध्य संकोच प्रकाश करे। तेणु साधनेच्छु नूतन मार्ग निर्माण करी जीवारे उत्साह एवं आनंद लाभ करिथाए। यांत्रिक जीवन कार्यानुकरण नूतनता अभाव
से श्वासोच्छ्वास करिवार कष्ट अनुभव करे नाही, अनुभव करे। तार चिंतन त्रिविक्रम चिंतन, चैतन्य वैदुर्य चैतन्य, प्रतिक्षण धावन तापाई सर्वसामान्य। साधनेच्छु क्षण काल पाई मध्य नीरवरे बसी रहिबाकू समर्थ होई न थाए। से क्रियाशील और अविश्रांत, से स्वयं चालित अग्रसर पुरोगामी मानस वर्तमान को छाड़ी अज्ञात भविष्यत रे प्रवेश करने को सदा प्रस्तुत। ताठारे अदम्य साहस निर्भीकता सदा विद्यमान। उभय संबंध रे स्वामीजी कहती, थरे मु काशी नगर रे बाटरे जाउथिली, बाटरे एक एक पाखरे बड़ पोखरीटीए, अन्य पार्श्वरे उच्च प्राचीर, मार्गरे अनेक बानर थिले, मांकड़ गुड़िए बहुत थिले। काशी नगर मांकड़ मानकर आकार मध्य बहुत बड़, स्वभाव मध्य भयंकर। सेही बाटरे मोर जीवाकू सेही बाटरे मोर जीवाकू बंद कर देबा परी से मांकड़ माने बोधे भाबिथिले। सेही बानर माने एका संगे कोलाहल करी आरंभ करदेले। मो पाद दुईटी को धरी नेले। भयभीत मु बेगरे दौड़ीबा आरंभ करदेली। मो पछे पछे सेमाने मध्य दौड़ीबा आरंभ कले। सेमानक पीड़ारू मु निजकू किपरि रक्षा करिबी एहा भाबी पारु नथिली। सेतिकी बेले जणे केही उच्च स्वर रे कहिले, दौड़ नाही, सेमानंकु सम्मुखीन हुआ। तत्क्षणात मु बानर मानक आड़को मुह करी ठिया होई गली। बड़ आश्चर्यर कथा, मोर ठिया हबाकू देखी सेमाने पृष्ठभंग देले, एणे तेणे दौड़ीबा आरंभ करदेले। एई घटनारू जीवନରେ मु एक पाठ पढ़िली। भयानक प्रसंग मध्य धैर्यर सह सम्मुखीन हेबा आवश्यक। जीवनर लाभ करुथिबा उपाय गुड़िक यदि सम्मुखीन हेबा तेबे बानर परी सेगुड़िक प्रत्यावर्तन करिवे। कौनसी परिस्थिति को देखी कांदिबा आवश्यक नुहे। साधनशील व्यक्ति कौनसी परिस्थिति रे कांदिबार आवश्यकता नहीं। से आ गोटे उदाहरण देखौथिले। आमे देखिथिबा मांकड़ माने गछर उन्नत वृक्ष रे एपटरू सेपट डिया डेई करत, छोटिया छोटिया डाल रे मध्य चढ़ी जाती। सेतबेले मध्य से भांगे नाही। बानर केतबेले ए डालरू से डाल को चले, सरु डाल रे मध्य विशाल बानर चढ़िकी चली जाई पारे, आ से डाल मध्य भांगे नाही। किंतु से जेतबेले हुंकार नाद करिकरी एक डालरू अन्य एक डाल को बृहत डाल को जेतबेले लंफ प्रदान करे, कालक्रमे कौनसी गोटे डाल मध्य भांगी जाई पारे। से डालटे समुच्च शिखर रु भांगिकी तले पड़े, आ से हनुमान मध्य मांकड़ मध्य तले पड़ी जाए। तले पड़ी गला परे से डालर सहित से जेतबेले डेईकरी हुंकार नाद करी से तले पड़ी जाए, सेतबेले से पड़िकरी कांदे ना जे एते उच्चर मु पड़ीगली, मोर हाथ भांगी कि गोड़ भांगी कि कोठी मोर पीड़ा होती जंत्रणा होची, एक कथा को से अनुभव करे ना। से पुणी हुंकार नाद करी पड़ीगला परे परे मध्य से पुणी हुंकार नाद करी पुणी से गछ उपर को चढ़ी जाए। तेणु कांदिबार आवश्यकता नहीं। साधने छु पाखरे कांदिबा, भय करिबा, डरी जिबा, व्यथा हेउची, जंत्रणा हेउची, एपरि भाबिबार कौनसी प्रकार भावना तांको पाखरे नथिला। तेणु से साधनेच्छु लोक कौनसी कारणरू भय करिवार से सेथिपाई तार उदाहरण दुईटी को देखैथिले। साधनेच्छुर विचार गंभीर अटे। विचार ताकू कार्य प्रेरित करिवारे शक्ति जोगाई थाए। एणु श्रेष्ठ विचार गुड़िकर मन को
लग्न करने आवश्यक से विचार को शुण से विचार से विषय रे चिंता कर पराजय रे भय कर नाही पराजय समय सामयिक अटे केवल सेतिकी मात्र नुहे पराजय गुड़िक जीवन रे शोभा बढ़ाई था आम एक सामान्य जिनिस पराजय जिते आम पाखे आसी पहुँचुची आम से भयभीत हो जाऊे से किंतु कहते पराजय जीवन को जीवन शोभा बढ़ाऊँ जदि पराजय न था तेबे कष्टर सम्मुखीकरण प्रसंग ही आसी न था ताहेले जीवन कौन बा सरसता था थरे से कहते जे से अमेरिका जिते जाकरी समुद्र तट बुलुंट भोक है गोटे सेव फल खाऊँ सेव बिक्री करुवा लोकटी आ सेव फल से खाऊँ से सेव फल किणिकी आनिक खाऊँ हठात गोटे बालक अमेरिकार से से सेव फल को छड़े नहीं पलैला विवेकानंद डाकिले मु किणिकी खाऊँ फल खाऊँ तू कहीं छड़े नहीं पलैई गलु से कहूँ से युवक से बालकटी कहूँ आज्ञा आपणकर आकार जना पड़ुंट आपण अमेरिकार निवासी नुहत आपण जड़े निश्चित विदेशी लोक के थे ये सेव फलटा भल ना ये सेव फल बहुत जिनस खराब खराब सेव फलटी से बिक्री करी आपण खाईकरी जिते खराब जिनस को देखिए आपण देश में मो देशर निंदा करेंगे तेणुक मोर ये सेव फलटी को छड़े नहीं गली अर्थात से देखिले जे सामान्य बालक तार देश प्रति किपरि भावना रही ता देशर साधना प्रति ता देश को उन्नत करने से केते प्रचंड सामान्य बालक पाखे देश प्रेमर माने बन्ही किपरि जली उठुची तेणुक से कहते जे कौन सी प्रकार यदि कष्ट न आसीबो जीवन रे ताहाले जीवनटा सफल हो पारिबनी जीवनटा केतेबेले हेले उपभोग्य हो पारिबनी एणु जेते कष्ट हेउना काहेकि जेते प्रमाद हेउथाउ ना काहेकि दुखित हेबा कदा दुखित केबे हेले हुओ नाही कारण कौन सी गाई केबे हेले कपट व्यवहार करेनी आमे गाई को देखिथिबा गाई चरौथिबा गाई पाखरु क्षीर दउथिया से केबे हेले कपट व्यवहार गाई केबे हेले करे नाही एहा मु केबे कहा पाखरु शुणी नाही जे गाईटी कपट व्यवहार करुछि से तो गोटे प्राणी विशेष मनुष्य नुहे तेणु पराजय को गणना करंतु नहीं आदर्श दिग को हस्त प्रसारण करंतु हजार बार पराजय प्राप्त हेले मध्य पुनः प्रयत्न करंतु कृते प्रयत्ने गति न सिद्ध्यति कुत्र दोषः एपरि भाव संस्कृत संस्कृत रे विचार रही ए संसार रे पूर्णतः दोषयुक्त किछि नाही आमे संसार को समस्ते दोषयुक्त बोलिक विचार करुछु आमे संसारटा भारी दोषपूर्ण लोक माने बहुत दोषी अछंती एभले विचार आमे समस्ते करुचे से किंतु कहूतिले संसारटा दोषपूर्ण नुहे संसार ही दोषपूर्ण रहिबो संसार को बदलैबा पई आमे कोनोसी प्रकार समर्थ हेई परिबा नाही से उदाहरण जिनिस देखाउथिले दुई तीनोटी चारोटी से कहते जे पद्म को देख पद्म केड़े सुंदर तार विकास केड़े सुंदर है पद्म को देखिला परे लोक मनमुग्ध हो जाउची तार सुबास तार विकास तार प्रस्फुटितता तार सौंदर्य लोक मन रे की भावांतर सृष्टि करुची किंतु तार जदि मूलटा को आमे जिबा ये जो पद्मर जो विकास घटिला कोठ विकसित हला तार मूल किए ना पंक समाज रूपक पंकरु पद्म भली विकसित हवा को पड़िबा हमकु तेणु समाज को निंदा करिया को नुहे समाज दोष को देखा को नुहे समाज को दोषयुक्त देखिले
ताले पद्म केबे हेले विकसित हो पारिबो नाही। गोटे सुवर्ण पात्र रे आनिकरी पद्म को नाड़ को थोईदेले कौन पद्मर विकास हो पारिबो। तेणु समाज को निंदा करिकरी पंक को निंदा करिकरी पद्मर केबे हेले विकास हो न थाए। तेणु आमको से भली पद्म भली विकसित हवा को पड़िबो। आमे जते बेले विकसित हो जिबा ताले समाज छाँ छाँ कलुषित हेले भी सुद्धा ताहा कौन हो ना विशेषण रे परिणत हो। तेणुक समाज को दोषयुक्त बोलिक विवेचना करने उचित नुहे। समाज सांगे आमको मिसवा पड़ो, आमको साधना करने को पड़ो, समाज सांगे मिसवा पड़ो। अन्य एक उदाहरण देखते कहते जे आम आखु देखुचे ये आखुटा को देखीदे कौन तार मधुरता को आम पाइबा कि आखुटा को देखीदे तार स्वाद आम अनुभव करिपरिबा कि ताकू जंत्र भितर पशिबा को पड़ो। आखु को जंत्र भितर पशिला परे से मोड़ी हब भांगिब तापरे ताधरु निर्जास बाहर रस बाहर से रस को जितेबाला आम पान करवा सेतेबाला जाइए तार मधुरता को पाइब। से भली समाजटा को हूँ से कठिन लौह सदृश से जंत्र सदृश लौहर कठिन जंत्र सदृश से समाज ता देहरे आमको मिसवा को पड़ो। आखु जीपरि भाव में मिसईला ता देहरे तार निजर बहुत जिनस को दबा को पड़ा केते पीड़ा है तापर जो निर्जास बाहरिला से निर्जास को आणिकी कौन है ना समाज ताको ग्रहण कला। तृतीय आ गोटे उदाहरण देखते चंदन गछ को देखला परे चंदन काठ को देखला परे ताधर कौन सुगंधता को आम अनुभव करि। चंदन गछटा को देखले आह कि सुंदर होउची कि सुगंध होउची ताको आनिबा को पड़िबो। पत्थर देहरे घसीबा को पड़िबो। चंदन पेड़ी रे ताको घसीबा को पड़िबो। समाज से भली चंदन पेड़ी भलिया पत्थर खंड भलिया अति न कठिन आ से कठिन सहित से तले घोरिबा को पड़िबो मिसवा को पड़िबो। मिश्रण हो सारा परे तार जो निर्जास आसीबो चंदन आसीबो ताकू नेकरी लोक तार मस्तक रे ताकू उपस्थापन करिवे। तेणु समाज को आम पत्थर भलिया समाज को मध्य निंदा कले चंदन विकास हो पारिबनी बा चंदन आसिक आमर मस्तक देश को सुशोभित करिपरिबनी बा तार सुगंध आमको दे पारिबनी। सेहीपरि भाव में चतुर्थ उदाहरण देखते जे हैम हैम बोले सुना सुना खंड को कौन देखीदे खाली हो कि सुना खंड तो खाली थुआ से सुना खंड थुआ हेले कौन लाभ हम ताकू मुदी करिया को पड़िबो ताकू पदक करने को पड़ो ताकू विभिन्न प्रकार अलंकार करने को पड़ो। सी जो अलंकार रूप में जो शोभित हम से कौन करने को पड़ो से कष्ट रूपक समाज पाखक जीव। चाणक्य लिखिं से लगे कौन तथा चतुर्भी सुवर्ण परीक्षते निघर्षण छेदन ताप ताड़न तथा चतुर्भी पुरुषं परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। सुना को जिपरि चारि प्रकार परीक्षा करा जाए निघर्षण कसटी पत्थर रे घसीवा को पड़े शुद्ध सुना अच्छी कि अशुद्ध अच्छी। छेदन ताको आरी रे काटिया को पड़ा जाए पका जाए पुणी ताको कौन करा जाए पुणी शुद्धता को परीक्षा करने ताको निया धेरे पोड़ा जाए। निघर्षण छेदन ताप पोड़ा जाए पुनः ताड़न ताकू पुणी गोटे मार्तुल बाड़ैया जाए माड खाइब पोड़ा जीव घसा जीव कटा जीव माड़ खाइब ताड़न हम तापर से पदक तैयारी हब मुद्रिका तैयारी हब समस्ते ताकू अलंकार रूप में ताकू व्यवहार करें। तेणु से भाव में मनुष्य मध्य चतुर्भी पुरुषं परीक्षते त्याग भावना केते रहिबो शील केते रही तार चरित्र केते अच्छी त्यागेन शीलेन तार गुण कौन अच्छी गुणेन तार कर्म कौन अच्छी से कौन कर्म करुची ये समस्त परीक्षा करला परे से उपयुक्त मनुष्य बोलिकी सेतबेले जाइकरी गणना करा जीवो। तेणु मनुष्य जेतबेले उपयुक्त हब सेतबेले ताकू समाज सहित कष्टदायक हो बा मलिन समाज हो बा समाज जेपरि थाउ ना कहीं से समाज सहित मिसवा को पड़ो आ से मिश्रण रे आमे मिसी सारा परे आमर साधन इच्छा बल रे आमे समस्ते पुनः पद्म भरी विकसित हवा आखु रस भली मधुरता देवा चंदन भली सुगंध वितरण करवा आउ सुवर्ण भली
पदक इत्यादि अलंकार रे अलंकृत हो पार तेणु समाज को निंदा करी नुहे तेणु जत्न करिया को पड़िबो तेणु दोषयुक्त किछि नाही समाज रे एपरी समाज रे स्थान नाही अन्यथा से कहते संसार रे पूर्णतः दोषयुक्त किछि नाही देवतांक परी दानवंकर मध्य यही समाज रे स्थान अछि तेणु आमे जदि दुर्गा पूजा समय रे महिषासुर को मध्य आराधना करा जाए महिषासुर को मध्य निमंत्रण करा जाए न हेले दुर्गांक भली शक्तिर आविर्भाव है न थांता कंसर जदि आविर्भाव न थांता कृष्ण को आसवा को पड़ न थांता तेणु से भली भाव से कहते जे आमको दानवर मध्य दानव हो न थांते एपरी आम्भ मान द्वारा करा जाइथिबा आमे माने जदि करा जाउथिबा दोष मानकर मध्य किछि स्थान अछि निजे किछि अपराध करुथिले मध्य परंतु सही अपराध बारंबार रोमंथन करिवे मन मध्यरे कले हेउथिले पराजय ही विजयर सोपान हो जिवो जदि दोष आचरित न होई थांता तेबे कौन प्रगति होई थांता एणु दोष गुड़िकर स्वागत हेउ दोष गुड़िकर प्रच्छन्न देव दोष गुड़िक हेउचंती प्रच्छन्न देवदूत विवेकानंदकर भाषा रे कष्ट मानकर स्वागत सुखर मध्य स्वागत एपरी हेले मु बा कौन कर पाइबी एपरी निराशा भाव आम मनरे न हेउ झे को चिंता करी आग को चलिवा लघु दोष को उपेक्षा कर आम जीवन संग्राम रे दोष धूली उठिब ही उठिब एही धूली को जे सही पारिबे नाही सेपरी कोमल शरीर युक्त एठारू फेरी चलंतु फेरी जान साधने छु प्रतिक्षण स्व कर्तव्य निशब्द और निरंतर पालन करे प्रत्येक कर्तव्य पवित्र अटे कारण कर्तव्य निष्ठा भगवानंकर सर्वश्रेष्ठ पूजा निजे करुथिबा छोट कार्य विषय रे जे असंतुष्ट ताकू निंदा करे से सबु विषय रे असंतुष्ट मान हो जाए प्रतिदिन तार पराजय होता है परंतु जे स्व कर्तव्य श्रद्धार सह निर्वहन करे तार भावी जीवन सुंदर और सुखमय हो पारे जे सर्वदा परिस्थिति को निंदा करे तार कौनसी कार्य रे अभिरुचि होई न थाए परिस्थिति को निंदा करिवार नहीं जे परिस्थिति को निंदा करी चलिला तार केबे हेले उत्थान हेई पारिबो नाही आपण माने जानिथिबे विवेकानंद केंद्र जोठी आपणकर कन्याकुमारी रे जो जगह विवेकानंद तपस्या करुथिले सेठी जो सुंदर मंदिर टी निर्माण हेची साधना केंद्र हेची कन्याकुमारी रे समुद्र रु पाखरु 8-10 किलोमीटर दूर रे कन्याकुमारी रे हेतला से जगह रे जो पहरी पहरी कर जाई साधना करथिले और तापर भारत मातार दर्शन कर सारा पर से अमेरिका को यात्रा करथिले से जो स्थान रे एक भव्य मंदिर टे निर्माण हो बोली जड़े लोक स्वप्न देखिला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर जड़े प्रचारक से देखिले कहले जे एथार गोटे भव्य मंदिर हम जहाँ की निर्माण है विवेकानंद रॉक मेमोरियल हॉल से व्यक्ति जनक दिने चेन्नई रे बसी चेन्नई रेल स्टेशन ने बसता रेल अपेक्षा करी देखिले जे जड़े भिक्षुक भिकारी टे रुटी खाऊछ से लक्ष्य कले से रुटी को छिंडौची आ बा हाथ में मड़ौची खाऊछ से देखुच तो रुटीटा देखा जाउची किंतु बा हाथ में कौन मड़ेगी कौन खाऊछ का लगे कौन खाऊछ बा हाथ में किसी देखा जाउनी आ से किंतु रुटीटा को छिंडौची बा हाथ में मड़ौची आ तापरे खाऊछ
से तापर जानिबा पई कौतूहल हला तांका ना थिला एकनाथ आनाड़े तांकर कौतूहल हला आ से जाई तांका पाखरे पहुंच के पचारले अरे बाबा तू कौन करूचु तू तो रुटी खाऊचु देखा जाउची ना हाँ आज्ञा मु रुटी खाऊची ना ये बाँ हाथ में मड़ई करी कौन खाऊचु ना आज्ञा मु जने भिक्षुक बहु कष्ट मते ये रुटी टी मिली किंतु ता संगे लगे खाइबा पई किछि मिलिनी तेणु मु भाबुची मो बाँ हाथ रे लुण अछि लुण नाही मु भाबुची मो हाथ रे लुण अछि आ से लुण टिकु लड़ाई करी मु खाऊची आनाले साहेब सांग सांग कहले जो तू यही भिक्षुक हो जाइछु कौन ना अरे बाबू तो हाथ रे लुण नाही तू लुणर परिकल्पना करि पारिलु तो हाथ रे रसगोला नाही तू रसगोलार परिकल्पना कहीं करि पालु नाही तेणु आमे माने मध्य सेही भली हेउछु सामान्य कथा देरे हमर मन को निवेश करि दैछे छोटिया छोटिया जिनिस आमे हमको निबज्जित कर देचे तेणु से माने विशाल कथा चिंता कर मन को आग माने सामान्य कथा चिंतन करदेले तो सामान्य जिनिसटा हो पार किंतु विशाल कथा चिंतन कर विशाल कथा जदि साधन छु सेना कि विशाल कथा चिंतन करे आ से ताकू साकार करिबा पई सफल करिबा पई से मध्य सदा सर्वदा तत्पर रहे तेणु से कहिथिले निजे करुथिबा छोट कार्य विषय रे जे आत्मसंतुष्ट संतुष्ट नुहे तांकू निंदा करे संतुष्ट नुहे से सबू विषय रे असंतुष्टिमान होइथाए प्रतिदिन तार पराजय हो जाए परंतु जे स्व कर्तव्य श्रद्धार सहित निर्वहन करे तार भावी जीवन सुंदर और सुखमय हो पारे विचार आमर साधन इच्छा आमर विशाल हवा दरकार जे सर्वदा परिस्थिति को निंदा करे तार कौन सी कार्य अभिरुचि हुई न थाए यही भली तार जीवन अखंड पराजयर आश्रय पलटि जाए एणु आमको स्व कर्तव्य पालन करी आग को बढ़िया को हेबो निज भुजद्वय उपरे कार्यचक्र को बहन करिवारे सिद्ध हेबा को पड़िबो तेबे जाई आमे प्रकाश को देखि पारिबा एवं अनुभव करि पारिबा साधनेच्छु निकटरे कौन सी कार्य तुच्छ होई न थाए निज मनर आनंद दायक कार्य न मिलिले मूर्ख निज मनर आनंददायक कार्य मिलीगले मूर्ख मध्य ताकू यशस्वी भाव निर्वहन करि परंतु जे स्व कर्तव्य कार्य रे रुचिमान होता है से ही वास्तव रे कार्य कुशली अटे जगतर समस्त विचार बरगछर बीज सदृश सोरिष परी देखा जाउथिबा बीजरु महान बरगछ उत्पन्न हुए एही वास्तविक अंश को जानी जे चतुरतार सहित कार्य करे से ही होची प्रकृत कर्म कुशली साधनेच्छा रहित लोक सबु कार्य बिना कष्ट रे होइजिबो बोली चिंता करे कौन सी कार्य हेउ बा न हेउ सेथिरे तार कौन सी परिणाम होई न थाए ता जीवन रे स्वेद कष्ट सहिष्णुता परिश्रम इत्यादि शब्द मानकर स्थान न थाए वरं विफलतार भय थाए समस्या संभावना अल्प तृप्ति इत्यादि ता जीवन सगड़र चालक स्थान रे बसी था साधक साधनेच्छा रहित व्यक्ति अभाव रे पूर्ण परिस्थिति चालित पवन अनुसार गतिशील होई मो जीवन रे एपरी किछि चमत्कारिता हेबो जहा द्वारा मु महान हेबी एपरी चमत्कार प्रतीक्षा रे रही जाए लुण बिना रोसई
सुगंध बिना धूपकाठी, तार कटि जाइथिबा विद्युत बल्ब, बस स्टाण्ड रे थिबा षंढ, साधनेच्छा रहित जीवन, एमानक मध्यरे किछि बड़ भेद न थाए। साधनेच्छीर उद्यान वेदर मंत्र, साधनेच्छुर वेद मंत्र का जो उद्यानंते पुरुष नावजानम, ये हूँ वेद मंत्र। ये वेद मंत्र कहूँ कौन ना जीवन मंत्र, अर्थात तुमको ऊपर को जावाक अच्छी, ऊर्ध्वमुख विकास हेबा उचित, अधोगति नुहे। यही मंत्रर अर्थ। उन्नत तथा उदात किछि लक्ष्य जेतेबेले जीवन आगरे रहे, सेतेबेले सही लक्ष्य उज्जीवित करने को गतिशीलता प्रदान करे। साधनेच्छु अर्जुन परी सबुआड़े लक्ष्य को ही देखे, जेपरी राधा कृष्ण को देखती सही परी ध्येयवादी साधनेच्छु। अरे सेपट को देखंतु, सुदीर्घ रात्रि समाप्ति हेउछि, नवोदय हेबा को जाउछि। आ बहु कालरू जो नरक जंत्रणा थिला तार अवसान समय यह। आज पर्यंत जो शरीर सबकल्प थिला ताहा आज सचेतन हेबा को जाउछि। शुण अशनीर किछि शुणा जाउछि, अशनीरव किछि शुणा जाउछि। इतिहासर प्राचीन काल गर्भरु बाहरी पर्वत शिखर रे प्रतिध्वनित होई आरण्य संचारी प्रत्येक मुहूर्त रे बढ़ी बढ़ी अप्रतिहत गति रे एही कोटि संख्यक जनता को जागरित करी ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सेवा तत्व गुड़ी को उच्च कंठरे प्रसारण करुथिबा किछि तुर्यवाणी शुणा जाउछि। हिमालय प्रवाहित होई पुण्य समीर परिधि पुण्य समीर परि निर्जीव अस्थिमांस युक्त मानकु जीवन दान करुछि। जड़ निद्रा को अपगत कराउछि, कार्योत्साह और धैर्य को जन्म देउछि। आमर ही भारत भूमि सुदीर्घ निद्रारू उठी जाइछि। यहाँ परे यहाँ को निवारण करने को बा अवरोध करने को किए बा समर्थ हेब? यहाँ परठारू से आउ निद्रित हेब नाही। कौन से दुष्ट शक्ति यहाँ को पीड़ा देव नाही। यहाँ आउ समर्थ पीड़ा देवा पाई आउ समर्थ है पारिबो नाही। जेहेतु देखंतु महाकाली रूपिणी से भारत माता जागरिता हुई सुदीर्घ उच्छ्वास पूर्वक उठी बसीची। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्तवरान निगोधत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। विवेकानंदंकर विषय रे मो पाखरे जेतिकी किछि संग्रह करथिली साधन इच्छा ताहा आपण मानक पाखरे उपस्थापन करिछि। एतिकिरी मोर वाणी को विराम दउछि। नमस्ते समस्त को नमस्कार, धन्यवाद। निजर समस्त अभिज्ञता एवं ज्ञानर आलोक आम मान आलोकित करने सह अनेक उदाहरण माध्यम मूल्यवान वार्ता प्रदान कर अनेक अनेक धन्यवाद सर। वर्तमान प्रश्नोत्तर समय उपनीत होइछि। कौन प्रश्न कार्य मन को आसता है तेरे पचारि पारे। समय कम अच्छी सभापति अभिभाषण रख। वर्तमान अनुरोध करुच्ची सभापति महोदय को निजर शेष अभिभाषण रक्षा सहित प्रदान। अनेक अनेक धन्यवाद पंडित महाशय। आपनकर अभिज्ञता ज्ञान जो भली भाव में विस्तृत भाव में सारगर्भक भाषण आम निकट रखिले बहुत तत्वपूर्ण
ଯାହାକି ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧନାର ପ୍ରକୃତ ସାଧନେଚ୍ଛୁ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ବା ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ଏ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଥିଲେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜୀବନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧନେଚ୍ଛୁ ହୃଦୟ ଉଦାର ହେବା ଦରକାର, ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଦରକାର, ବୁଦ୍ଧି ବୁଭୁକ୍ଷିତ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ସାମଗ୍ରିକ, ବାକ୍ୟ ସରଳ, ଭାବ ପାରିବାରିକ ହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ମୋଟ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ସାଧନା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର କଥାର ସାରତତ୍ତ୍ୱ। ଏବଂ ସାଧନେଚ୍ଛୁ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ଭୟ କରେନି। ସାଧନେଚ୍ଛୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଚାରବନ୍ତ, ପରାଜୟକୁ ସେ ଡରେ ନାହିଁ। ପରାଜୟଟା ଜୀବନର ଶୋଭା ବଢ଼ାଏ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ଉତ୍ଥିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଧନେଚ୍ଛୁ ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ବିଶାଳ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପରମ ଲକ୍ଷଣ। ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ତୁଚ୍ଛ ନୁହେଁ। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ରୁଚିମନ୍ତ ରଖିଲେ ନିଜେ କୁଶଳୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କୁଶଳୀ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେମାନେ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ଆମେ ଆପ୍ୟାହିତ ହେଉଛୁ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠୁ ରଖି ପୁଣି ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସମୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷାରାଣୀ ମଲ୍ଲିକ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ବିଚାରଧାରା ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର 55ତମ ପାଠଚକ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଆସରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଭାବବିମୁଗ୍ଧ ଋଷି ପ୍ରତିମ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରଣାମ, ଶୁଭକାମନା ଓ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବର ଅୟମାରମ୍ଭରେ ଉପସ୍ଥାପିକା ଭଉଣୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବିଭୁ ବନ୍ଦନାର ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଇଁ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ମାନ ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ହୃଦୟରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କୁ। ବିଶ୍ୱବିଜୟୀଙ୍କ ବିବେକ ବାଣୀ ପଠନ ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନଛୁଆଁ, ସେ ପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦାର୍ହ। ଧନ୍ୟବାଦ ପୁଷ୍ପ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ବରାଳ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସମୟୋପଯୋଗୀ ସରସ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ସଭାର ସୁପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ। ସର୍ବୋପରି ଆଜିର ଆକର୍ଷଣ ସୁବକ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଣ୍ଡା, ସଂସ୍କୃତ ଭାରତୀ ପୂର୍ବକ୍ଷେତ୍ର ସଂଯୋଜକ ତଥା ସଂସ୍କୃତ ଭାରତୀ ଉତ୍କଳର ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ଗାରିମାମୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସାଧନା ଜିଜ୍ଞାସୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଅନ୍ତରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆମର ଆସର ତରଫରୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଆସରର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୁସିର ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବାକୁ ଥିବା ଅଭୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ସଭକ୍ତି ପ୍ରଣାମ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବର ଯବନିକା ଟାଣୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷାରାଣୀ ମଲ୍ଲିକ।
ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଭୟ କୁମାର ସୁତାର ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିପାଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ଅଭୟ କୁମାର ସୁତାର ଶାନ୍ତି ପାଠ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାକ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ମ୍ୟାଡାମ ସଭା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ସମସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏତେ ସମୟକୁ ଦେଇ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଭା ସମାପନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଥରକୁ ନୂତନ ବିଷୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଦଉଛି। ଏଇଥିରୁ ଆମର ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗଠନିକ ରାଜନୀତି କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା 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 ଅଭୟ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟିକେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ 10 ମିନିଟ। ଆମେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି 55ତମ ଏହି ପାଠଚକ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏତେ ସମୟ ଧରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ ଏବଂ ବିମୋଦିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଶା ରଖିବି ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଲେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା। ଯଦିଓ ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 5 ମିନିଟ ଡେରି ହେଇଗଲା, 8ଟା ବେଳେ ସରିବା କଥା 8ଟା 5 ହେଇଗଲା। ତଥାପି ଆ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଆମକୁ ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟିତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ ଆମର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଜିଲ୍ଲାର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ। ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ ଯେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସେ ମିଟିଂ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କେତେ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, କଣ ହେଲା, କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, କଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମ କରିବା। ଅଭୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଗତ 20 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ନିତାଇ ଚୈତନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ମୂଳ ବସତି ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋଟ 20 ଜଣ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲୁ।
ସେଥିରୁ ଦେଖାଗଲା ଆମର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମୁଦାୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି। 9ଟି ବ୍ଲକରୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟି ବ୍ଲକରୁ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ଆଉ 3ଟି ବ୍ଲକ ଗର୍ଦ୍ଦପୁର, ରାଜନଗର ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ଏ 3ଟା ବ୍ଲକରୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାହାକୁ ସଦସ୍ୟତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହୁଁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବୈଠକରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ 3ଟି ବ୍ଲକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କରୁ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ। ଆଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆମର ଚାଲୁଥିଲା ଯେମିତି ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଏ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚାରା ରୋପଣ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ସୁଖର କଥା 20 ତାରିଖ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦର୍ଶନ ବିଭାଗ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭୂୟାଁ ସାର୍ ଏବଂ ମାର୍ଶାଘାଇ କଲେଜର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଣ୍ଡା ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସଂଗଠନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଲା। ଉଭୟ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ।